On behalf of Reliance Digital, I'd like to take this opportunity to welcome each and every one of you here. This is a one-stop destination for all your electronic needs. Welcoming none other than the cast of Tanu Weds Manu Returns, none other than the very gorgeous Kangana Ranaut and Madhavan. Woohoo! A very good afternoon. Thank you so much for joining us here. So, we're going to ask you a famous question which the press knows and all of you all know. It's very famous. One day to go. So, how do you feel? We have shown the film to a few people already from the industry and from some of our friends and family. And I don't think we can be prouder of any other film. This is by far, it's the ball out of the park. We're very, very happy now. We were nervous about the anticipation that the trailer had conducted. She was very confident, and in this case, she's right, as usual. So, hi everyone. Yes, the film is actually releasing tomorrow, but from our end, it's already out there. People are watching it every day. There are 4 to 5 shows that's going on, and we are getting tremendous response on social media and on our telephones. And people, I've not seen this kind of response for any film. And you know, the best part is that everyone's liking it. And I think, so we aren't, I mean, if you expect us to be nervous or anything, no, we aren't. So, like all know that a lot of directors have been seeing this film and they absolutely love it. Well, talking about directors, all of us who've seen the movie, that's Tanu Weds Manu, have loved it. And it's not very often that, you know, such jodis come back, but we're very glad that Tanu and Manu are returning. So talking about the chemistry that you guys have, it's fantastic in the film. So we have this application called as GeoChat. Now, since we are Reliance Digital, we have a lot of gadgets here, and we have applications that make these gadgets so helpful. So this application is called the GeoChat. It's like an instant messaging application, and we want Tanu to send you something, Manu, on the application GeoChat. And we have a sticker pack that's there, and there's a special sticker especially for Tanu Weds Manu Returns. So let's see that happening. So these are the limited edition stickers, and I think after you all see the film, you would love to own these. But download them right now and download them on GeoChat, and don't miss out on the fun because they're too much fun. Tanu, Datto, and Deepak and Manu, everyone will identify with the characters, and you would love to have the these stickers on your phone and other apps. Fantastic. Well, talking about Tanu Weds Manu Returns, Kangana Ranaut is returning to Reliance Digital today to promote this film. Well, this entire store and all the branches are known as the lucky mascots for movies. So, and this is first time for Madhavan, so I would like to ask both of them, how is it returning to Reliance Digital? I do agree, because last time was my first time and I came here during Queen's promotion. I think I'd come on the day Queen had released. And this time around, I come just one day before the release. But it's been very lucky for me. And this is a great store, one of the biggest that we have here. And I'm already in shopping mood because there are such great appliances I can see. But yeah, I obviously can't do that. Well, Kangana knows that I'm a gizmo freak. I already love all the electronics that I see. And I believe if you're saying it's a good mascot and good luck for all of us, we'll keep coming back for all the films. I am a complete Gizmo fan from the very beginning, and I've heard that whenever you come to do these promotions, they give you awesome gifts in the store. So Kangana and I are looking forward to our gifts. Thank you, Reliance Digital. We love the gifts you're giving us. Thank you. So since you are a Gizmo freak, what is that one gadget that would keep returning to your life? What is that one thing that you would keep buying? So is it like, if you're buying an iPhone, would you go again for an iPhone, or is it some other gadget that would keep returning? I find the most advanced and useless gadget that will promise to make my life better, but has no bearing to it, as the most attractive thing.
So if I find a watch that can be also a phone, that can also be a tablet, I'll buy it. But nobody in the world ever uses the watch as a phone. Similarly, there are other things. I have glasses that can actually work as a hearing aid. So I have a cap that has an air conditioner inside. So anything that's absolutely useless but high technology is something that I'm crazy about. Fantastic. Members of the media, I'm sure you have a lot of questions that you'd like to ask this Jodi. So the question and answer session is now open. Kindly raise your hands. We have mics that we'll give you. माधवन, जो आपका ताल्लुक है हिंदी सिनेमा से वो बेहतर होता जा रहा है। ये एक एसोसिएशन लंबा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, वक्त के तौर पर तो ये लंबा तक सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये हर एक फिल्म एक बच्चे की तरह होता है। तनु वर्सेस मनु जब हमने पहले बनाई थी, बहुत लोगों को इस पे विश्वास नहीं था। उनको लग रहा था कि ये बहुत पुरानी ज़माने की फिल्म है, एक 1980s की फिल्म है, लोगों को इसके गाने नहीं समझ में आएंगे, पसंद नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त अलग किस्म के गाने चल रहे थे। पर मुझे पूरा यकीन था कि ये जो मिट्टी की खुशबू वाली कहानी है, ये लोगों को बेहद पसंद आएगी। और आज इसका सीक्वल बन रहा है 4 साल बाद, और इतनी उत्साह के साथ लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमने फिल्म देखी है और हमें बड़ा गर्व है इस फिल्म को लेकर। तो मुझे नहीं लगता कि इस सफ़र को मैं लंबा कहूँगा। ये मेरे लिए इंग्लिश वाला सफ़र हो सकता है, पर इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। कंगना, पिछले दिनों आप अपने स्कूल में भी गई थी, अपने कॉलेज में गई थी और वहाँ आपने बड़ी मस्ती की। एक तरह से इस फिल्म में भी हम देखते हैं शहर दर शहर बहुत सारे किस्से नजर आते हैं। तो इस बार भी हम तनु वेड्स मनु रिटर्न से ऐसी उम्मीद करें? जी, तनु वेड्स मनु लंदन में शुरू होती है और वहाँ से कानपुर, उसके बाद पंजाब और उसके बाद झज्जर, एक जो हरियाणा का छोटा सा गांव है, वहाँ पे उसका क्लाइमैक्स होता है। तो यहाँ आपको, जैसा मैडी ने कहा कि इसमें 4 साल बाद की फ्रेशनेस भी है, लेकिन उसके साथ में जो एक मिट्टी की खुशबू जिसके लिए लोगों ने तनु वेड्स मनु को पसंद किया था, वो भी इसमें अच्छी तरह से कायम है। आनंद सर के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है, जिस तरह से फिल्में आप करती हैं और हमेशा वो जिक्र करते हैं आपका, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और आई थिंक वो एक बहुत ही, अब खासकर जब हमें तनु मनु का इतना ट्रेमेंडस रिस्पांस मिल रहा है हर जगह से, और क्रिटिक्स में भी इन्हें मतलब 4 और 5 स्टार्स ही मिल रहे हैं हर जगह से। तो मुझे लगता है कि आनंद जी विल बी वन ऑफ दोज वेरी फ्यू डायरेक्टर्स जिनकी अभी इस साल में हैट्रिक हो जाएगी। उन्होंने पहले तनु मनु, फिर रांझना और फिर अब ये फिल्म। तो बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इतने कम उनकी फिल्मोग्राफी है और इतने अच्छी ही सारी फिल्में ही अच्छी बनाई हैं। माधवन और कंगना, आप दोनों से सवाल है मेरा कि फिल्म ऑलरेडी सुपर हिट है, आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो फिल्म देख रहा है तारीफ़ कर रहा है, तो क्या अब पार्टी की तैयारी अभी से शुरू हो रही है? हाँ, हम लोग तो इस फिराक में रहते हैं कि कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए पार्टी करने का, अपने दोस्तों को मिलने का, क्योंकि मिलना इतना हो नहीं पाता है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो होगा इन टाउन या जो फ्री होंगे उनको हम लोग डेफिनेटली मिलना चाहेंगे और उनको एंटरटेन करना चाहेंगे, हम उनके साथ अपनी जो खुशियां हैं शेयर करना चाहेंगे। तो पार्टी तो बनती है। माधवन, पार्टी तो हो चुकी, अभी तो मतलब 2 दिन से हम जो दिखा रहे हैं, और उसके बाद हम इनकी खूबसूरत कंगना जी के एक घर है जो मुझे लगता है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया है, वहाँ पे ऑलरेडी हमारी पहली पार्टी हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि जिस तादाद में ये पार्टी बढ़ेंगे वो थोड़ा जो है ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लोग आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा मज़ा भी आएगा। अच्छा, तनु वेड्स मनु के बाद, रिटर्न्स के बाद कोई 3rd पार्ट आने का इरादा है? जो क्या नया नाम होगा, क्योंकि अब तो ये सुपर हिट हो चुकी है फिल्म। वैसे तो रिलीज़ नहीं हुई है फिल्म अभी, लेकिन हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं और लगता है ऐसा ही हो जाएगा। और अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, और मैं चाहूँगी कि चाहे मैडी के साथ काम करूँ या आनंद जी के साथ काम करूँ, एक फ्रेश रोल मुझे और ज़्यादा बड़ा चैलेंज मिले, तो वो मेरी उम्मीद रहेगी। एक और सवाल है आप लोगों से कि पीकू की रिलीज़ के बाद काफ़ी दिनों का गैप आया, तो आपको लगता है कि अब फिल्म के लिए काफ़ी अच्छा होगा, लोगों को एक डिफरेंट फिल्म देखने को मिल जाएगी और पीकू काफ़ी धमाल मचाए। लेकिन रणवीर की बात करें, रणवीर कपूर की बात करें, तो उनकी फिल्म इतनी खास नहीं कर पाई है, लेकिन आपकी फिल्म काफ़ी लोगों को पसंद आ रही है, प्रोमोज हो गए, गाने हो गए, तो ये अच्छा टाइमिंग है आप लोगों की फिल्म की रिलीज़ के लिए?
आप संक्षेप में पूछेंगी सवाल, मैं समझा नहीं। फिल्म पीकू पीकू की बात रिलीज हुई। हाँ, और उसके काफी गैप हो गया है हाँ फिल्म जी। के बाद, तो आप लगता है कि पीकू को छोड़कर अब आपकी फिल्म को लोग मतलब सही समय पर रिलीज किया जा रहा है। जी, तो हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए जो कि हम लोग मोर कंगना है, हम तो यही चाहेंगे कि जितनी फिल्म्स रिलीज़ हों सब सुपर हिट हो जाएं और बहुत ढेर सारे पैसे इस इंडस्ट्री में आए ताकि लोग ढेर सारे पैसे हमें दें। पर अगर कोई फिल्म चलती है तो अच्छी बात है, नहीं चलती है तो सबको उससे नुकसान होता है। और जहाँ तक पीको का सवाल है, वो बहुत अच्छी तरह चल चुकी है, कुछ और फिल्म नहीं चले हैं। पर इस फिल्म के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि हर वक्त हम 2 कदम आगे हैं। पिक्चर जब बनी नहीं थी लोगों ने कहा कि बन गई, जब ख़त्म नहीं हुई थी तब उन्होंने कहा कि सेंसर हो गई, जब सेंसर नहीं हुई तब मैं खुद डबिंग करा तो उन्होंने कहा रिलीज़ आ गया, अब कह रहे हैं कि हिट है, सुपर हिट है, अब तो रिलीज़ तो हो जाए पिक्चर। पर मुझे लगता है कि वक्त सही होना बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट 2 clear weeks बिफोर अ बिग फिल्म कम्स। होप वी मेक अ लॉट ऑफ मनी यार। कंगना, नेशनल अवार्ड, अब उसके बाद तन्वज मनु रिटर्न्स, क्या एक्सपेक्टेशन है? जो भी एक्सपेक्टेशंस थी आई थिंक उससे ज़्यादा ही रिस्पांस मिल रहा है, और सब फिल्म को इतना सराह रहे हैं और सबकी परफॉर्मेंसेस को, तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई चाह सकता है। अभी जो भी रिव्यूज़ आ रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा सराहना मिल रही है, तो आई थिंक दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स। हाय कंगना, हाय मैडी। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आजकल बॉलीवुड में अनकन्वेंशनल जोड़ियाँ बन रही है और बहुत ज़्यादा हिट हो रही है। लाइक पीकू को ले लो, इरफान, दीपिका, आयुष्मान, भूमि पेडनेकर, आलिया, रणबीर हुड्डा। तो ऐसी कौन सी जोड़ी है जो आप उन्हें पर्दे पर देखना चाहोगे आने वाली फिल्मों, आने वाली मूवीज़ में? ऐसी कौन सी जोड़ी होगी? आई थिंक मेरी और इरफान खान की। एंड व्हाट अबाउट यू मैडी? मेरी और सनी लियोनी की। दैट्स ग्रेट। थैंक यू देखो सो लड़के ताली बजा रहे हैं यार, अच्छा है। थैंक यू। फैंटास्टिक, थैंक यू मेंबर्स ऑफ द मीडिया। वैसे लक बहुत ही डिफिकल्टी से मिलता है, लेकिन देयर आर विनर्स टुडे। वी हैड अ कॉन्टेस्ट, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, एंड वी हैव फ्यू लकी विनर्स हियर, सो प्लीज वेलकम दीज विनर्स अप ऑन स्टेज। Kangna, before you leave your dialogue, especially you've learned Haryanvi for this movie. So we'd like to say that we love the entire feel and look of the character. Thank you so much. It's great to have the Tanu Weds Manu Returns Jodi right here at Reliance Digital. Have a pleasant day ahead. एक्सपेक्टेशंस रखते थे उससे भी ज़्यादा हमें जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि अभी मीडिया स्क्रीनिंग कल फिल्म रिलीज हो रही है 22 मई को, लेकिन मीडिया स्क्रीनिंग हर जगह हो रही हैं और कई लोगों को भी दिखाया जा रहा है। और जो रिव्यूज़ हैं 4, 4.5 या 5 स्टार की रेटिंग है सब जगह, और हाईली रिकमेंडेड फिल्म, इनफैक्ट कुछ लोग तो इसको फिल्म ऑफ द ईयर भी कह रहे हैं। तो हम लोगों ने जितना भी चाहा होगा या सोचा होगा उससे ज़्यादा ऑलरेडी हमें मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। हम तो सिर्फ चाहते हैं कि हमारा जो ये प्यार का जो लेबर रहा है, जिस संयम से और जिस प्यार से हमने इसको बनाया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हमको लोगों से मिले। और अगर ये मिल जाता है और हमारी प्रोड्यूसर बहुत सारे पैसे बनाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ हमें नहीं। एक्सपीरियंस नहीं, और आई थिंक जो तनु है वो जब 4 साल पहले इसको लॉन्च किया था तो एक नई तरह की लड़की फिल्म सिनेमा में लोगों को देखने को मिली थी। और अब जो दत्तों को लॉन्च किया है तो वो भी लंबे दांत और छोटे बाल और हरियाणवी बोलती है और काफ़ी रौनक है इसमें, अगर आप देखें तो ये भी इस बॉलीवुड को एक नई तरह की अभिनेत्री मिली है। तनु की तरह तो फिर बहुत सारे कैरेक्टर हो गए, मुँहफट या शराब पीना या लड़के घुमाना, फ्लर्ट होना, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव स्पीच होना, उसके बाद जैसे बहुत फॉलो किया। दत्तों के बाद मुझे लगता है ये भी लोग काफ़ी ट्राई करेंगे। लड़की को घुमाना, शराब पीना, क्या कुछ किस तरह से लड़कियों को घुमाना, शराब पिलाना? मैं भी अपनी बीवी को घुमा रहा हूँ यार। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की कहानी बड़ी क्लियर है। मेरी बीवी और हमारे बीच में जो शादी के बाद जिसमें तकरार हुए, जिसकी वजह से हम साथ में नहीं रह पा रहे हैं, उसको और प्यार में जो दरार आ रहा है उसको कैसे सुलझाते हैं और कैसे जो है प्यार अभी बरकरार रख पाते हैं नहीं, उसके बारे में कहानी है। लड़कियों को तो घुमा नहीं रहा और बेचारा मनु शराब कभी नहीं है, एक्चुअली कभी कभार चोरी
ये तो पहले से नेशनल अवार्ड विनर थी और हमारे फिल्म के दौरान इनको नेशनल अवार्ड मिला, तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे लगता है कि वो काबिल हैं और उन्होंने इतनी अच्छी काम की है टीम में, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिजर्व अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऐसे रिकॉग्निशन लोगों को मिले। व्यूअर्स को व्यूअर्स को यही कहना चाहेंगे कि 22 मई को जो है तनु वेस्ट मनु रिटर्न्स आ रही है और हमारी फिल्म को बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, तो अपने परिवार के साथ जाइए। इससे कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर समर हॉलीडेज में इससे अच्छी ट्रीट आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नहीं हो सकती। एक छोटा सा त्यौहार है, तो ये पूरे फैमिली के साथ 22 मई को इस फिल्म को थिएटर में देखिए और एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि फैमिली के साथ देखोगे आप तो उसका ज़्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच।